Hello students, welcome back. Children, today we are going to analyze with the next topic from a syllabus. The topic is related to the third chapter that we were studying, children. That was, we studied almost everything related to demand. I told you about the determinants of demand. फिर पिछले हमने बात किया था about law of demand, all the assumptions, exceptions, right? And in the last lecture, children, we spoke about the different types of demand curves that are existing in different types of markets. So children, I have explained to you perfect competition में demand curve किस type का आएगा. अच्छा, along with that I also explained to you children monopoly में demand curve कैसे होता है. Then we also saw about monopolistic competition and the kinked demand curve which operates in the oligopoly market. ठीक है. So we are taking it to the next level, children. Now, what does the law of demand exactly say? The law of demand says that whenever there is a change in the price of a commodity, there is going to be a corresponding change in the quantity demanded, and both are inversely related, children. अभी inversely related का मतलब क्या होता है कि if the price increases, then the quantity demanded will decrease, and if the price decreases, then the quantity demanded is going to increase. So that's exactly what we speak by inverse relationship between price and quantity demanded, right? Achha. Where does this concept of elasticity of demand originate, children? So, elasticity of demand basically was an extension to the law of demand. Law of demand, children, can only tell us that when there is a change in the price of a commodity, there is going to be a corresponding change in the quantity demanded, but it cannot tell us by how much it is going to change. कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता है, लेकिन कितने से कम होता है ये लॉ ऑफ डिमांड आपको नहीं बता सकता है. या फिर चिल्ड्रन व्हेन वी से कि लाइक व्हेन द प्राइस इज गोइंग टू फॉल डिमांड इज गोइंग टू राइज, बट वी एग्जैक्टली कैन नॉट टेल it's going to rise by how much. So for that purpose, Alfred Marshall, he devised a new concept that's termed as elasticity of demand. Now children, elasticity of demand tries to measure the change in the quantity demanded to the change in price. मतलब जब भी price change होगा तो quantity demanded कितना response देता है, कितना react करेगा, क्या reaction दिखाता है. That's exactly, children, what is referred to as elasticity of demand. So we have got two different concepts, children. On one side, we will have the price of a commodity. On another side, children, we will have the quantity demanded. Now, when we talk about price and quantity demanded, we also know that कि जैसे आप प्राइस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज. वी आर गोइंग टू स्टडी कि लाइक हाउ डज इट रिस्पॉन्ड. Acha, what are the different concepts that we'll be studying here, children? So today we are going to study about the different types of elasticity of demand. In the coming lecture, I will tell you about the subtypes. जैसे कि price elasticity के कौन-कौन से types होते हैं, income elasticity के कौन-कौन से types होते हैं, cross elasticity के subtypes होते हैं, children. And then we'll be also studying one more short note that's related to promotional elasticity of demand. फिर हम लोग पढ़ेंगे what are the different methods for measuring price elasticity of demand. And then we have what's known as the significance of elasticity of demand, and then we move on towards the next chapter, children, that's termed as demand forecasting. So let's begin it here, children. The question arises like, how do we exactly define elasticity of demand? So children, here goes the definition. So as we are going to study something related to elasticity of demand, children, let me tell you exactly what is this elasticity of demand that we always speak about. So here it's elasticity of demand. Elastic ये word का मतलब होता है children, either we can say that it's sensitiveness या फिर there's another word which says responsiveness. तो सेंसिटिव का मतलब क्या होगा, एक चेंज होने की वजह से जब दूसरा वेरिएबल चलो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है, उसको हम लोग सेंसिटिविटी या फिर रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं. अच्छा, अभी बात आती है लाइक रिस्पॉन्स इन व्हाट, तो द रिस्पॉन्स इन डिमांड.
वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिस्पांस इन डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कैसे किया जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चिल्ड्रन, इट एक्सप्लेन्स द चेंज इन डिमांड। क्या चेंज होगा? डिमांड। किसकी वजह से चेंज होगा बच्चों लोग? तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी चेंज ड्यू टू द चेंज इन द डिटरमिनेंट्स। मतलब क्या होता है कि डिटरमिनेंट्स, अभी डिटरमिनेंट्स क्या है? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द लास्ट लेक्चर और द प्रीवियस लेक्चर। प्राइस आता है बच्चों लोग, वी हैव गॉट इनकम, वी टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, वी हैव द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो इसमें से कोई भी चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है, that's what is called as the elasticity of demand. Elasticity, children, word, it basically comes from that rubber has the quality of elasticity. When you pull it, it has the ability to go back and then come back to its original position. Acha. Now see, how do the economists, children, they define elasticity of demand? तो एक तो हमने 12th में भी पढ़ा था, it is the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to a change in the price of that commodity. तो प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पांस दिखाता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, हियर वी हैव गॉट अ सेपरेट डेफिनेशन चिल्ड्रन, सो वी कैन just try to analyze it here. So elasticity of demand is, children, elasticity of demand will be either great or it will be small. मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा होता है फिर कम, ज्यादा होता है तो आप उसको क्या बोलोगे? इलास्टिक। कम होता है तो उसको क्या बोलने का? इनइलास्टिक। अच्छा, सो व्हेनेवर द डिमांड इंक्रीजेस चिल्ड्रन, अभी जब डिमांड इंक्रीज होता है तो उसके लिए ऑप्शंस क्या आता है? या तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज मच और लिटिल। डिमांड बढ़ेगा बच्चों लोग, या तो मच या फिर लिटिल। कब? फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। मतलब क्या होता है, जब भी प्राइस फॉल होगा तो डिमांड कितने से बढ़ेगा? बढ़ने के दो ऑप्शंस है, या तो मच या फिर लिटिल। या फिर इट्स आल्सो हैपन चिल्ड्रन कि डिमांड इज गोइंग टू डिमिनिश। डिमांड क्या होगा बच्चों लोग? डिमिनिश होगा। अच्छा, कैसे डिमिनिश होगा? तो अगेन इट्स सेम चिल्ड्रन, या मच या फिर लिटिल। मतलब डिमांड कम होगा, मच या फिर लिटिल, when there is a given rise in the price of a commodity. Now this is a definition given by Alfred Marshall. I'm explaining to it again to you children. So elasticity of demand का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? कि डिमांड बढ़ेगा या तो मच या फिर लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस, और डिमांड कम होगा बाय मच या फिर लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। तो बच्चों लोग अगर प्राइस फॉल होता है और डिमांड मच से बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि डिमांड इज इलास्टिक। अगर वो लिटिल से बढ़ेगा तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज इनइलास्टिक। अच्छा, वैसे ही बच्चों लोग जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड अगर मच कम हो गया तो बोलने का इलास्टिक डिमांड, अगर लिटिल कम हो गया तो बोलने का इनइलास्टिक डिमांड, राइट? अच्छा, और सपोज समटाइम्स वी कैन आल्सो कम अक्रॉस द फॉर्मूलाज दैट वी हैव चिल्ड्रन। फॉर्मूलाज में जनरली we come across a formula which is very common in nature children. तो यहाँ पे एक और definition लिखा हुआ मिलेगा आपको। The definition is this children. What is the definition? The definition is elasticity of demand is the degree of what? Responsiveness. क्या बोला? Degree of responsiveness. Children, responsiveness means reaction. कौन respond करेगा? Demand. किसकी वजह से रिएक्ट करेगा? प्राइस। तो प्राइस की वजह से जो डिमांड रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बुलाते हैं, राइट? अच्छा चिल्ड्रन, इफ यू जस्ट गो टू फ्रेम अ कॉमन फॉर्मूला फॉर दिस, अगर हम लोग इसके लिए कॉमन फॉर्मूला बनाने के लिए चाहते हैं तो कॉमन फॉर्मूला किस तरीके से आएगा वो देखते हैं, बाद में आपको बाकी का फॉर्मूला बनाना इजी चाहिए। सपोज इफ यू जस्ट राइट योर चिल्ड्रन दैट elasticity of demand is equal to, ओके, सबसे पहले हम लोग टॉप पे न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? तो परसेंटेज, ये वाला सिंबल आपको पता है चिल्ड्रन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोला बच्चों लोग? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये आप न्यूमरेटर में लिखोगे। और चिल्ड्रन नीचे जहां पे आपको डिनोमिनेटर में एक एंट्री मारना है वहां पे आपको लिखना है परसेंटेज चेंज इन
अच्छा, here I'm going to enter a very general word children, that is something known as the determinant of demand. क्या बोलेंगे उसको? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. अभी बच्चों डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है, इट्स क्वाइट सिंपल. तो अभी आप इसको कैसे समझोगे चिल्ड्रन कि टॉप पे तो हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. नीचे क्या लिखने का, डिटर्मिनेंट. अभी वो डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है. सपोज अगर मैंने लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस, तो इट बिकम्स प्राइस इलास्टिसिटी. अच्छा, मतलब चिल्ड्रन कि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स मिल सकते हैं आपको. किसके वेरिएंट्स मिल सकते हैं? ये डिटर्मिनेंट वर्ड के वेरिएंट्स आएंगे. मतलब सपोज चिल्ड्रन इफ यू आर गोइंग टू राइट हियर प्राइस, देन इट बिकम्स प्राइस इलास्टिसिटी. अगर डिटर्मिनेंट की जगह पे सपोज बाय चांस अगर आप वहां पे दूसरा एक डिटर्मिनेंट लिखना चाहते हो, जैसे कि यू आर गोइंग टू मेंशन समथिंग रिलेटेड टू इनकम. मतलब डिटर्मिनेंट की जगह पे अगर आपने लिखा percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income, then it becomes a formula for income elasticity, right? अच्छा, अगर आप टॉप पे लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x और डिनोमिनेटर में लिखोगे परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी y, then children it becomes the formula for cross elasticity. और बाय चांस चिल्ड्रन अगर आप डिटर्मिनेंट की जगह पे लिखते हो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, मतलब डिमांड चेंज होगा, किसकी वजह से चेंज होगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, देन इट बिकम्स प्रोमोशनल इलास्टिसिटी, राइट? सो अब तक आपको एक मीनिंग सिर्फ क्लियर करके लेना है कि जब भी प्राइस चेंज होगा, इनकम चेंज होगा या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं और उसकी वजह से जब डिमांड रिएक्ट करेगा चिल्ड्रन, तो इट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? अच्छा, now let me take you to the connected short notes that we have here children, and it will be something quite simple because we already know the meaning. So here we have the definition, the formula और फिर उसका derivation सिखाता हूँ मैं आपको. Children, the next concept that we have here, it will be something related to first type of elasticity of demand children. It's a price elasticity of demand. क्या दिया हुआ है? Price elasticity of demand. And children, whenever we talk about the price elasticity of demand, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिमांड बदलेगा लेकिन प्राइस की वजह से. So here goes the definition children, that it is the ratio of, okay, परसेंटेज की जगह पे हम लोग और एक वर्ड यूज करते हैं, that is proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price. मतलब चलो यहाँ पे प्राइस बदल रहा है और प्राइस की वजह से क्या चेंज हो रहा है चिल्ड्रन, डिमांड, तो उसको आप नाम दोगे प्राइस इलास्टिसिटी. So whenever there is a change in the quantity demand of a particular product due to the change of the price of the particular product, it's known as price elasticity of demand. So वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, it is the ratio of proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price. अच्छा, अब इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? ये जो डेफिनेशन लिखा है चिल्ड्रन, आप इसी को फॉर्मूला में यूज कर सकते हो. हाउ? ये लिखा है मैंने यहाँ पे EP, which stands for price elasticity. फिर क्या लिखा है? Percentage change in quantity demanded. क्या लिखा है? Percentage change in quantity demanded and divided by children percentage change in price. तो डेफिनेशन को बच्चों लोग यहाँ पे हमने फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है. अच्छा, अभी इसको मेजर करने का एक तरीका आता है चिल्ड्रन, एंड व्हाट्स दैट एग्जैक्ट मेथड दैट वी हैव. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसके लिए आपको क्या करना है, ये लिया है मैंने पहले यहाँ पे डेल्टा क्यू. क्या लिखा है? डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन क्वांटिटी, राइट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. Change in quantity upon original quantity multiply 100 exactly gives you children what's the change in quantity demand, but that in the form of percentage. जैसे बच्चों पहले अगर मैं बोलता हूँ कि 10,000 मारुति सुजुकी के ऑल्टो 800 के कार्स बिकते थे, तो बाद में बच्चों लोग हमने देखा है कि लाइक कार का सेल बढ़ के कितना हो गया है, 15,000. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन कि लाइक यहाँ पे हम लोग को पता है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है करके. अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, पहले आप चेंज इन क्वांटिटी, पहले 10 था बाद में 15 हुआ. सो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी, तो मैंने लिखा यहाँ पे बच्चों लोग 5,000, राइट, डिवाइडेड बाय
ये बच्चों लोग है डेल्टा क्यू। क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 10,000। तो सपोज इफ आई एंटर हियर इट चिल्ड्रन 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 so you get the answer in percentage. So suppose children ये zeros अगर हम लोग यहाँ पे गायब कर देते हैं, suppose if I just cancel this zero children, then you will understand कि like around अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखता हूँ चिल्ड्रन तो इट्स गोइंग टू बी अराउंड 50%. तो इफ यू जस्ट गो टू एनालाइज दिस, तो इसका मतलब क्या होगा चलो कि कार का सेल कितने से बढ़ गया 50%. से कैसे मिला? कार का सेल एग्जैक्टली कितने से बढ़ा था 5,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनली सेल कितना था 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? अच्छा, देन सपोज चिल्ड्रन कि बाय दैट लेवल इफ वी अंडरस्टैंड कि लाइक हाउ दिस एग्जैक्टली इज कैलकुलेटेड, तो आपको क्या करना डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे आपको क्या मिलेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे मिलता है? तो डेल्टा पी क्या लिखा है डेल्टा पी दैट इज ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय और चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 चिल्ड्रन. सो इससे आपको मिलता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड यू गेट व्हाट इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, तो इस फॉर्मूले को आगे हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? हाउ कैन वी जस्ट derive another formula from this children? Okay, what we are doing is this, I'm just highlighting these symbols that are given here children. तो अभी ये 100 कैंसिल होगा, यस. तो जो बचता है वो आप वापिस से लिख सकते हो. तो यह लिखा है आपने यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू. अच्छा, जो डिवीजन में बच्चे लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा सो मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज दिस डेल्टा पी अपॉन या फिर पी अपॉन डेल्टा पी, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होगा. एंड देन चिल्ड्रन correspondingly we can say that here is the final formula that is derived. आपने क्या किया बच्चों लोग यहाँ पे ये डेल्टा क्यू जो है उसको यहाँ पे लिखा है, फिर हम लोग को डेल्टा का साइन बच्चों लोग एक ही साइड में चाहिए इसलिए आपने ये डेल्टा पी इधर लिखा है. सो दिस इज चिल्ड्रन डेल्टा पी और मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू. आपने इसका पोजीशन चेंज किया. तो चलो मल्टीप्लिकेशन में तो पोजीशन चेंज करो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 50, राइट? अच्छा, और थोड़े डेरिवेशन सिखा रहा तो आपको आइडिया आ जाएगा बच्चों लोग. फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, अपने 12th में भी पढ़े हुए हैं. प्राइस इलास्टिसिटी के सब टाइप जो आते हैं चिल्ड्रन, इसमें पहला वाला क्या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आता है. देन वी हैव गॉट चिल्ड्रन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand, right? Acha, so these are the types, but as I said like we'll be learning them later. अच्छा, अभी जैसे price elasticity की बात हो गई children, so in a similar way we can also analyze what is known as income elasticity. किसके बारे में पढ़ सकते हैं हम लोग? income elasticity के बारे में. तो children it's much easier we can say. तो ये रहा आपके सामने बच्चों लोग इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन. उधर बच्चों लोग प्राइस की वजह से डिमांड बदला था, यहाँ पे इनकम की वजह से बदलेगा. सो इट इज क्या लिखा है? इट इज द रेशियो ऑफ अच्छा प्रोपोर्शनल चेंज दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इसकी वजह क्या होगी बच्चों लोग? दैट इज प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम. जहां पे 2 लिखा हुआ है बच्चों लोग वहां पे अगर आप सिर्फ डिवीजन का साइन डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली इसका एक फॉर्मूला डिराइव होता है. सो ई वाई का मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. वापस बच्चों आप इसका भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. कैसे? तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, इससे मिलता है बच्चों लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, इससे मिलता है परसेंटेज चेंज इन इनकम. फिर वापस से चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस 100 ईच. तो जो बचता है उसको आप वापस से अगर लिखोगे तो क्या बचता है? देखो चिल्ड्रन इट्स डेल्टा क्यू आपने यहाँ पे लिख दिया अपॉन क्यू
मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन डेल्टा वाई। ये जो डिवीजन में था ये मल्टीप्लीकेशन में गया तो वाई ऊपर गया, क्यू नीचे आ गया। अल्टीमेट फॉर्मूला चिल्ड्रन ए डेल्टा क्यू, फिर ये जो डेल्टा वाई है इसको आप इधर शिफ्ट कर रहे हो और ये जो क्यू है इसको आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे। सो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इनटू वाई अपॉन क्यू। सो चिल्ड्रन दिस इज द फाइनल फॉर्मूला दैट वी एक्चुअली कम अक्रॉस, राइट। अच्छा, अब इनकम इलास्टिसिटी के भी चलो सब टाइप्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको उसके बाद सिर्फ नाम बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको वापस से डिटेल में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। सो वी हैव गॉट टू टाइप्स, इधर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है चिल्ड्रन या फिर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, पॉजिटिव में इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 और इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट। और एक नेगेटिव आता है, लेकिन वो एक अलग क्वेश्चन है बच्चों, सो विल बी स्टडीइंग रिलेटेड टू दैट। अभी जैसे इनकम इलास्टिसिटी का शॉर्ट नोट तैयार हो गया, इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन वी कैन आल्सो डिराइव अ शॉर्ट नोट दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस इलास्टिसिटी। सो चिल्ड्रन क्रॉस इलास्टिसिटी का शॉर्ट नोट तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि दो टाइप के गुड्स होते हैं। वी हैव गॉट समथिंग व्हाट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स एंड वी आल्सो हैव गॉट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये वहां की बात आती है। So, how do we exactly prepare children the definition? So, it is the ratio. किसका ratio बच्चों? तो proportionate change in quantity demanded, मतलब percentage change in quantity demanded. लेकिन किसका? Of commodity X, of commodity X to the, मतलब divided by proportionate change in the price of commodity Y. मतलब X का डिमांड बदल रहा है क्योंकि Y का प्राइस बदल रहा है। चाय का प्राइस बदल रहा है बच्चों, इसकी वजह से कॉफी का डिमांड चेंज हो रहा है। कोक का प्राइस बदल रहा है तो थम्स अप का डिमांड चेंज हो रहा है। इट्स दैट वे। तो चलो इसका भी फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। EC का मतलब होता है चिल्ड्रन क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा, देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X, डिमांड किसका बदलेगा? X का। लेकिन बच्चों प्राइस किसका बदलेगा? Y का। तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों लोग, कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी का, वहां पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सो डेल्टा क्यू एक्स मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड दैट्स गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द होल डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, क्या बोलना है? Change in the price of commodity Y divided by original price of commodity Y and that's going to be multiplied by 100. तो here children जो बचा हुआ है अगर उसको हम लोग फिर से लिख दें तो exactly कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा देखते हैं। So it's going to be like this: change in quantity demanded of X upon original quantity of X multiply by ओरिजिनल प्राइस ऑफ y अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ y। अच्छा, तो वापिस से आप इसको अगर यहाँ पे शिफ्टिंग कर देंगे इसका तो यू विल एग्जैक्टली कम अक्रॉस द फॉर्मूला दैट वी हैव, राइट। अच्छा, फॉर्मूला के लिए चिल्ड्रन जनरली वी ट्राई टू डिराइव अ कंप्लीट एंडिंग का फॉर्मूला दैट वी हैव। सो फाइनल फॉर्मूला आपके सामने है चिल्ड्रन, इट्स चेंज इन क्वांटिटी। इसका चेंज इन क्वांटिटी चिल्ड्रन कमोडिटी एक्स, इसका क्वांटिटी चेंज यहाँ पे चेंज कर हम लोग, इट्स गोइंग टू बी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। और यहाँ पे आपको और एक बात याद रखनी है, क्या? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, राइट, मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई अपॉन quantity of commodity X, but that is ultimate formula that we have. तो अल्टीमेट फॉर्मूलाज, कभी भी आपको अगर लगता है बच्चों कि मुझे शॉर्टकट में फॉर्मूलाज तैयार करने हैं करके, तो उसका भी मैं आपको एक हिंट बता सकता हूँ। इट्स लाइक दिस चिल्ड्रन, हाउ वी कैन एक्चुअली ट्राई टू मेक दिस फॉर्मूलाज। सो दे आर क्वाइट सिंपल। अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो, किसकी? प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये हमेशा आता है डेल्टा क्यू एक्स। अभी प्राइस इलास्टिसिटी है तो नीचे लिखने का बच्चों लोग डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी।
मल्टीप्लाई करने के बाद P ऊपर जाता है, Q नीचे आएगा। अगर आप इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो, सो व्हाट विल बी डूइंग चिल्ड्रन, विल बी बेसिकली गोइंग इट लाइक दिस कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y मल्टीप्लाई बाय Y ऊपर Q नीचे। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात है चिल्ड्रन, सो डेल्टा QX अपॉन डेल्टा PY मल्टीप्लाई बाय PY अपॉन QX। सो आप मतलब फॉर एग्जांपल की लाइक सी चिल्ड्रन, द क्लासेस विल प्रोवाइड यू विद द टेक्स्ट बुक्स ऑफ मनन प्रकाशन। आपके कॉलेजेस में कुछ अलग अलग टेक्स्ट बुक्स बताए जाते हैं, ठीक है। whenever it is possible for me, I will be handing you the simple notes which are hand written, क्योंकि जनरली मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो आई मेक इट श्योर कि लाइक चिल्ड्रन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। तो अपने हैंडराइटिंग से, अपने खूबसूरत हैंडराइटिंग से लिखा हुआ आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे भी आदत था ना, जब हम लोग बोर्ड पे लिखते थे तो आप फोटो निकाल के लेके जाते थे। तो अभी हम लोग आपको कोरोना के टाइम पे फोटोज ही भेजेंगे और ये थोड़े से सिंपल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको पढ़ना आसान जाए। अभी जहाँ तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है, तो यू शुड बी अवेयर कि आपके टेक्स्ट बुक्स में कुछ कंफ्यूजिंग फॉर्मूलाज दे, लेकिन ये सिंपल फॉर्मूलाज आप यूज करोगे तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो ये था बच्चों आपका शॉर्ट नोट, दैट इज इसमें एक मिसिंग है विच विल बी रिलेटेड टू प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन आई विल टीच यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और भी मैं आपको ऐसे कंपैरेटिव चार्ट बना के पढ़ाऊंगा ताकि आपको सिंपल जाएगा। फिर धीरे धीरे टॉपिक खत्म करके फिर हम लोग चैप्टर नंबर 5 एंड देन एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन हम लोग फिर चैप्टर नंबर 1 और 2 भी एनालाइज करने वाले। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।